We are live now. This is P.S. Srivastava, Faculty of Social Science at Evolution Career Institute. Today, we will discuss first chapter of your social science, that is nationalism in Europe. Means यूरोप में नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ. So first of all, we will have to know that what is nationalism, and second thing, what were the conditions before nationalism. These two things are very important to know about that. So now nationalism means love for nation. You can say that nationalism is a patriotism. मतलब कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस, राष्ट्र के प्रति फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, राष्ट्र के प्रति फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, राष्ट्र के प्रति फीलिंग ऑफ प्राउडनेस. दीज ऑल थिंग्स क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेशनलिज्म. Now comes that what was the previous condition before the rise of nationalism. You know, you all have already studied in class 9 about the French Revolution. Here it is necessary to clear that your chapter Rise of Nationalism is divided into 6 parts, and your first part is the French Revolution and the idea of a nation. जैसा कि मैंने बताया कि आपका चैप्टर 6 भाग में विभाजित है, और उसका जो पहला भाग है वो है क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. मतलब कि इस पॉइंट में 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हो गया आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट हो गया idea of the nation. Means what was the overall impact of the French Revolution, and second thing that what idea came out to make a nation, means the concept of nation state. So firstly we will discuss about the French Revolution. As I know you all have studied in class 9 about the French Revolution very well, but in this chapter the meaning of the French Revolution is seen by the speculations of nationalism. मतलब कि यहाँ पर फ्रांस क्रांति का इम्पैक्ट जो है वो नेशनलिज्म के चश्मे से देखना है. तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या स्टोरी है. देयर वाज ए फिलोसोफर नेम फ्रेडरिक सोरी. ही हैज मेड ए सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स by which he has tried his best to display the current situation as well as the coming situation in France.
कि फ्रांस की मौजूदा स्थिति और फ्रांस में आने वाली स्थितियों को उसने पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया है। पेंटिंग में ये थी कि देयर इज ए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड people of different countries along with France are in a queue. They have been holding their national flags and they are marching ahead. They are saluting the liberty of freedom and forwarding. There it has been displayed in the figure that there are the remains of monarchical state, मतलब कि जो मोनार्की पहले वहाँ पर थी, अर्थात जो फ्रांस जो था वो छोटे छोटे स्टेट्स किंगडम में डिवाइडेड था और उस पर मोनार्की का शासन था, और यू कैन से दैट एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रनिंग दोज डेज, मतलब एक व्यक्ति का शासन, सिंगल पर्सन गवर्नमेंट, एंड दैट वेरी गवर्नमेंट इज नन एज ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्कियल गवर्नमेंट. इन दैट वेरी गवर्नमेंट देयर इज नो ऑप्शन टू लिसन द वॉइस ऑफ द पीपल कंसिडरिंग देयर needs, considering their necessity and overall visualizing the need of the hour. These were the lacunae of the monarchical rule. So this is the brief introduction of French Revolution. In detail, I have already taught this chapter in class 9. So those students who have a clear vision of the French Revolution, they will feel quite easy to understand this chapter very well. तो इस रिवोल्यूशन से जो दो तीन कंसेप्ट आए, फर्स्ट कंसेप्ट था यूटोपिया. यूटोपिया, you know, such an ideal stage of government which cannot exist in reality, means इतना आदर्श सरकार, मतलब ऐसी शासन जो इतने आदर्शों और उदारता से ओतप्रोत है, भरी हुई है, जो हकीकत में ज़मीन पे कार्यान्वित नहीं हो सकती है. इसको दूसरी भाषा में हम राम राज्य भी कह सकते हैं. सो दिस आइडिया वाज नॉट सक्सेसफुल. व्हाट वाज द रीजन? यू कैन एज्यूम. पहले क्या था? पहले जो मोनार्कियल रूल था, दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द पीपल, कि वे अपनी जनता का शोषण किया करते थे, और शोषण की ज़मीन पे उदारता का इमारत कभी खड़ा नहीं हो सकता. सो दिस वाज द रियल कॉज दैट यूटोपियन कंसेप्ट जो है वो फ्रांस में फ्लोरिश नहीं हुआ. नाउ द सेकेंड कंसेप्ट वाज नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है. नेशन स्टेट इज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन एंड द रूलर come forward to develop a sense of identity through shared history, shared culture and shared language. Whereas in modern state में क्या होता है? Modern state में sovereignty lies in a single person and administration is
systemized, whereas in nation state, rulers and the citizens both have the same view, both have the same feeling. So the concept of nation state was accepted by a majority of people. इस कारण से नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है वह बहुत बड़ी संख्या में जनता को अच्छी लगी। जनता ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मॉडर्न स्टेट को इस कारण से एक्सेप्ट नहीं किया कि उसमें जो रूलर होते थे उनका जनता से प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता था। वे जनता की वस्तु स्थिति को प्रत्यक्ष रूप में विजुलाइज नहीं कर पाते थे, मतलब कि रूलर तक जनता का पहुंच नहीं होता था। जबकि नेशन स्टेट में वे रूलर को अपने करीब पाते थे, अपना वेलफेयर समझते थे और उनके जो रूलर होते थे वो अपने आप को उसी श्रेणी में मानते थे, उससे अलग नहीं मानते थे। उनकी संवाद, उनकी हर पॉलिसी वो जनता के वेलफेयर के लिए होती है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन फेवर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट कि उस समय जनता का सबसे बड़ा भाग जो था वो नेशन स्टेट के कंसेप्ट पर एग्री किया, नेशन स्टेट के कंसेप्ट को स्वीकृति दी। वन थिंग, इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली, मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल का। जैसा कि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जानते थे कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज क्या था, पीजेंट्स थे, एंड 10% पॉपुलेशन में क्या थे, अरिस्टोक्रेट थे, क्लर्जी थे और मोनार्की थे। तो अब 90% लोग जो थे वो नेशन स्टेट के कंसेप्ट के फेवर में थे। सो नाउ इट इज क्वाइट क्लियर दैट द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वाज एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड फर्दर इट वाज प्रमोटेड, it became ascendant among the people, and all the coming incident took place on this ground. So we will further discuss about the final impact. तो फाइनल इम्पैक्ट में क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पीपल ऑफ फ्रांस डिमांडेड द एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट डेमोक्रेसी वाज द डिमांड ऑफ द पीपल एंड मोनार्की वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल. So when the revolution took place, we all know that the revolution started in 1789. Okay, revolution started in 1789. So what were the major changes that took place in that very time, in that very period, in that very duration? So the first thing was la patrie. La patrie, this is the French sentence, means this is written in English but this साउंड इज फ्रेंच। मतलब कि फ्रेंच भाषा में ला पैट्राई है जिसका मतलब होता है फादरलैंड। सो नाउ कम ऑन दिस पॉइंट, हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इट्स मीनिंग, हाउ इट वाज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग नेशनलिज्म इन यूरोप. As in our family we respect our father, we love our father,
we take care of our father, we have feeling towards our father. In the same way, the people of France earlier, those who were understanding themselves that they are the subject of the France, means what their king will decide, they are compelled to accept. But now they have become the citizen. So the relation between people and the land of France was son and father. So this was more enjoyable for the people of France. So this was the reason that this idea got emphasized. कि इस कारण से यह विचार जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गई, बहुत ज़्यादा स्वीकृति में आ गई। सेकंड कंसेप्ट क्या? ला सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन ऑफ द कंट्री। वही बात है कि पहले लोग जो है अपने को क्या समझते थे कि जस्ट आई एम द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टेट, मतलब कि मैं इस राज्य का प्रजा हूँ। नाउ वी आर द सिटीजन, वी हैव द ड्यूटी, वी हैव द राइट, नो वन कैन snatch this right, no one can abolish this right. So their moral boost up became very high, and resultantly क्या हुआ कि यूनिटी इन कम्युनिटी, मतलब कि समुदाय में एकता आई। सेकेंड थिंग क्या हुआ? when all are son then share will be same, कि जब सभी बच्चे ही हैं तो सभी को समान हक मिलेगा। सो द कंसेप्ट ऑफ इक्वल राइट वाज एस्टेब्लिश्ड। ओके, क्वाइट क्लियर? सेकेंड थिंग, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट सेकेंड पॉइंट, power transfer from monarchy to common people। यू नो, रिवोल्यूशन टुक प्लेस, और रिवोल्यूशन जब हुई तो क्या किया लोगों ने? दे ओवरथ्रोन द मोनार्कियल रूल। जब मोनार्कियल रूल को उखाड़ फेंक दिया गया, रिजल्ट क्या आया? पावर केम टू द पीपल, मीन्स पावर केम इन द हैंड्स ऑफ पीपल। इट मीन्स दैट दे गॉट द राइट ऑफ फ्रेंचाइज, राइट ऑफ वोटिंग, राइट ऑफ sharing their ideas. So this was the second changes that took place during the French Revolution, which helped to bring nationalism in Europe. Now the third point, लोगों ने कहा कि जब शक्तियाँ मेरे पास आ गई है तो झंडा भी मेरा अपना होगा। So a new tricolor flag was designed। मतलब कि एक नया झंडा लाया गया, और वो झंडा क्या था? 3 कलर का था। पहले क्या था? रॉयल फ्लैग था। चौथा चेंजेज क्या था? फ्रेंच बिकेम नेशनल लैंग्वेज। पहले फ्रेंच कौन बोलते थे? एज यू नो कि इंटायर फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेट किंगडम्स,
सो पीपल ऑफ डिफरेंट किंगडम्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। विभिन्न प्रोविंस के लोग विभिन्न छोटे छोटे राज्य के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, तो आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं हो पाते थे। सो ए सिंगल लैंग्वेज वाज डिमांडेड so that unity can be brought in France. Clear? Now the next point number 5. New national anthem was composed. नए राष्ट्रगान का निर्माण किया गया, रचना की गई। जैसे हमारे यहाँ जनगण मन अधिनायक जय है, इन द सेम वे वहाँ का भी। और वो क्या था? ला मर्सिलीज। सिक्स चेंजेस क्या थे? स्टेट जनरल वर इलेक्टेड by common people and National Assembly and renamed नेशनल असेंबली। अर्लियर कंडीशन क्या था? स्टेट जनरल वर इलेक्टेड बाय द किंग। नाउ सिचुएशन इज व्हाट? अब जो है स्टेट जनरल वहाँ की जनता के द्वारा चुने गए, मतलब कि उसमें जनता का पार्टिसिपेशन हुआ, जनता को एक मोरल बूस्टअप मिला, जनता अपने को पहले से ज़्यादा सिक्योर फील की। So this change also helped to bring nationalism in France. And last changes क्या थी? लास्ट चेंजेस था फ्रेंच आर्मी spread nationalism abroad in यूरोप। कि फ्रांस की आर्मी ने नेशनलिज्म को फ्रांस से बाहर यूरोप के अन्य देशों में फैलाया। चूँकि उनका ये अनुभव था कि हमने फ्रांस में नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करके यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चेंज लाए हैं, तो फ्रांस से बाहर जो उस समय छोटे छोटे स्टेट के रूप में थे, उसमें रहने वाले लोग भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको भी इस अधिकार से बेनिफिट पहुंचाया जाए। दिस वाज दी मोटो बिहाइंड स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एब्रोड फ्रॉम फ्रांस। मतलब कि फ्रांस से बाहर
नेशनलिज्म को ले जाने के प्रति उनकी यही भावना थी। सो दिस वेर दी चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑल द चेंजेस हेल्प in bringing nationalism in France. Now these circumstances got changed all of a sudden. What were that? ये चेंजेज आए, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, इस्टेब्लिश हो गई। जैसे सरकार के गठन में 3 चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव होती हैं, लेजिस्लेटिव होती हैं और जुडिशियरी होती है। तो उन दिनों 5 एग्जीक्यूटिव थे, 2 लेजिस्लेटिव थे और 1 डायरेक्टिव था। डायरेक्टिव का एग्जीक्यूटिव के साथ बनती नहीं थी, हर एक छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ाई होती थी। ड्यू टू दैट वेरी रीजन political stability was in danger, and Napoleon Bonaparte, who was a dictator, military dictator, took the advantage and captured the France। कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि उसने फ्रांस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और ये सारे इंसिडेंट कब हुए? ये हुआ 1799। आपको पता है, मैंने बताया कि 1789 को 1789 में रिवॉल्यूशन हुई थी। 1791 में नेशनल असेंबली बनी और इस प्रकार से वहाँ पर हर एक सरकार अपने सत्ता में आई। इसी बीच में 1799 में नेपोलियन का धमाकेदार एंट्री होता है। सो बीइंग एन डिक्टेटर, ही हैड हिज ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रूलिंग। उस शासन करने के लिए उसके पास अपने नियम और कानून थे। उसने क्या किया कि ही प्रेजेंटेड ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज, मतलब विधि और नियमों का एक संग्रह लाया, जिस संग्रह को हम सिविल कोड क्या कहते हैं? सिविल कोड। फर्दर स्टडी करेंगे तो ये सिविल कंडक्ट भी आपको मिलेगा। और ये जो है 1804 में लाया था। कब लाया था? 1804 में। इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है। दिस कोड वाज डिजाइन्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। दिस कोड वाज brought by Napoleon Bonaparte. So the name of the code was given on the name of Napoleon. Clear? So it will be very important to know that what things were in the code of civil law or in the code of Napoleon, या नेपोलियन के द्वारा 1804 में बनाई गई कोड में कौन कौन सी बातें थी। दीज पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स फ्रॉम विच देयर आर मेनी क्वेश्चंस in 1 marks, 3 marks and 5 marks in almost all examinations. So we will discuss इसमें नेपोलियन ने क्या किया? इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने सभी बराबर है। चाहे आप सलमान खान होइए
या एक साधारण आदमी होइए, इफ यू विल गो बियॉन्ड द रूल यू विल बी पनिश, बिकॉज रूल इज इक्वल फॉर ऑल। सेकंड, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। नो वन हैज पावर टू स्नैच दिस राइट, कोई भी आपको अपनी संपत्ति का हक नहीं ले सकता। नॉर द रूलर ऑफ द फ्रांस नॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस, एंड दैट वेरी राइट इज permanent and that is completely in the welfare of people. So right of property was 101% accepted by the people of France. Now the third point, Napoleon was a liberal. So and those days there was the custom tradition ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि बेगार प्रथा थी। लोगों को अपने राजा के घर में या राजा के बगानों में, राजा के कार्यालयों में, राज्य में बनने वाली सड़कों में या उस राज्य के जो खदान होते थे उसमें मुफ्त की सेवा देनी पड़ती थी। सो नेपोलियन एबोलिस्ट फ्यूडल सिस्टम कि फ्यूडल सिस्टम को नेपोलियन ने क्या कर दिया, एबोलिस्ट कर दिया, हटा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, पहले ये भी प्रथा थी कि पीजेंट्स वर सेल एंड परचेज। कृषक दास सर्फडम, तो ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। ये सर्फडम का मतलब होता है कृषक दास। देयर वाज द ट्रेडिशन बाय विच पुअरर्स वर टेकन, they were reached at the African Dweep where they were settled down by the umpires, those who were engaged in the cultivation of tea and coffee. And this was the rule that until they are serving there at least 5 years, they are not allowed to return. तो नेपोलियन ने क्या किया, ये सर्फडम्स को से मुक्ति कर दिया। पांचवा काम उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आवाज़ क्लियर है, आप लोग नोट करते चलिएगा कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को उसने इम्प्रूव कर दिया, क्योंकि पहले तो सड़कें ही नहीं थी, ना ही ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, और जो कुछ व्यवस्था थी वो बहुत जीर्ण हालत में थी और लोगों की आवश्यकताओं को फुलफिल करने में के लिए नाकाफ़ी थी। सो कंसीडरिंग द नीड ऑफ द पीपल, नेपोलियन ब्रिंग चेंजेज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या था, किसी को व्यापार करना है, हर एक छोटे छोटे स्टेट थे। जैसे आज के डेट में आपका एक ज़िला का जो रकबा है, ज़िला की जो क्षेत्रफल है, इतने ही क्षेत्रफल के एक स्टेट होते थे, और एक स्थान से माल को दूसरे स्थान तक ले जाना है तो हर एक जगह जो है उनको चुंगी देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, लेवी देना पड़ता था। तो उसने क्या किया कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को एबोलिश कर दिया। तो एबोलिस्ट गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, एबोलिस्ट गिल्ड रिस्ट्रिक्शन।
सेवेंथ रूल उसका क्या था? पहले सिचुएशन ये था कि मान लीजिए कि हैम्सबर्ग है, वहाँ पर 1 मीटर में जो है 54 सेंटीमीटर का होता है, कहीं पर ये 46 सेंटीमीटर का होता है। किसी स्टेट में 900 ग्राम का 1 केजी होता था, किसी स्टेट में 750 ग्राम का 1 केजी होता था। तो ये क्या थे? यूनिफॉर्म नहीं थे। इसलिए नेपोलियन ने क्या किया? ही ब्रॉट यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम बेस्ड ऑन डेसिमल। So, weights and measurements based on decimal system। डेसिमल सिस्टम के पर आधारित वजन का और माप का नियम नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। अब लोगों को ये रियलाइज होने लगा था कि नेपोलियन इज नॉट ए पर्सन, नॉट ए ह्यूमन बीइंग, बट ही इज एन एंजल एंड गॉड हैज सेंट देम टू सर्व अस। सो पीपल वेयर एंजॉयिंग देयर लाइफ, बट ऑल ऑफ सडन नो वन नोज नेपोलियन। Situation was that कि Napoleon was a very, very ambitious person. He believed in the expansion of the border. He wanted to rule over the entire Europe. So slowly he made the policy to win over the एडजेसेंट स्टेट्स, मतलब कि जो स्टेट फ्रांस के अगल बगल में होते थे सभी पे लड़ाइयाँ करना है, लड़ाइयाँ जीतनी है और उसको अपना पार्ट बनाना है। सो दिस पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय दी नेपोलियन। हुआ क्या कि इस प्रकार के चेंजेस से अब जो पड़ोसी स्टेट थे उनके यहाँ हरकंप मच गया। They were in danger. They used to think that if he is continue, then our monarchy is not going to continue. कि भाई अगर ऐसा मेरे पड़ोस में हो रहा है तो हमारे यहाँ मोनार्की तो रहेगी नहीं, हमारे यहाँ के पीपल भी रिवोल्ट कर देंगे और हमें भी यहाँ की जनता जो है सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तो हुआ क्या? ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों ने कलेक्टिवली मिल करके नेपोलियन के साथ लड़ाई की। वो लड़ाई का नाम बैटल ऑफ वाटरलू है, इन बीच नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड, ही वाज कैप्टिवेटेड एंड ही वाज सेंट टू द आइसलैंड द्वीप। कि नेपोलियन को पराजित किया गया, बंदी बनाया गया, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहाँ पर उसने जून 1815 में मर गया। इन दिस वे नेपोलियन एज ख़त्म हो गया और ये चारों ब्रिटेन, रसिया एंड प्रसिया मिल करके फिर से बर्बन डायनेस्टी के किंग जो लुइस 16 थे उनको फ्रांस की गद्दी पर आसीन कर दिया। इन दिस वे मोनार्की रीस्टोरेड एंड डेमोक्रेसी एंड्स। सो योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट्स हियर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, keep watching and continue learning, and if this video is really outstanding, really very useful for upgrading your knowledge, do not forget to like and share. Thank you so much.